Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis, we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also, we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors, days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also, we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333886. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए पहले एज यूजुअल हम अपने रिवीजन करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च की गई थी। रीज़न क्या था कि वहाँ पे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, वहाँ पे लोगों को रीडिंग की एक हैबिट डेवलप की जा सके। तो वहाँ के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर अनबिल मंगेश जी के द्वारा ये फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम को लॉन्च किया गया था ताकि रीडिंग को प्रमोट किया जा सके तमिलनाडु में। यहीं पे आपका फाइट चेस ओलंपियाड हुआ था। यहीं पे अगर आपको याद हो, चेन्नई में पहली एम्बुलेंस, फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स लॉन्च की गई थी, चेन्नई तमिलनाडु। और यहीं पे गवर्नमेंट स्कूल्स में ब्रेकफास्ट स्कीम भी लॉन्च की गई थी फॉर द स्कूल गोइंग प्राइमरी स्टूडेंट्स, और ये M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं नासा के हबल एंड स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा अभी 2 एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए गए। अर्थ लाइक हैं, यहाँ पे बोला गया कि वाटर की प्रेजेंस भी देखने को मिली है। एंड ये जो 2 एक्सोप्लैनेट्स हैं 218 लाइट ईयर्स अवे हैं। लाइट ईयर बेसिकली क्या होता है? एक आपको लाइट को 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने को मिलता है उसको लाइट ईयर कहते हैं। तो मतलब अगर अर्थ से हम एक रॉकेट में जाएं तो हमें 218 साल लगेंगे अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर लाइट की स्पीड से कम पे ट्रैवल करेंगे तो हमें और ज़्यादा टाइम लगने का। ठीक है, तो ये 2 जो एक्सोप्लैनेट्स हैं डिस्कवर किए गए, इनका नाम है केपलर 138d और इसका रहेगा केपलर 138c। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएस एयरफोर्स के द्वारा अभी रिसेंटली एक हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183A को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। अब देखो सुपरसोनिक क्या होती है और आपकी हाइपरसोनिक में डिफरेंस क्या होता है। जो सुपरसोनिक मिसाइल्स होती है ना, वो ट्रेवल करती है एट द स्पीड ऑफ ग्रेटर देन 5 मैक। ठीक, वो जाती है हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक क्या होती है? जब 1 मैक की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करेगा वो सुपरसोनिक। और 1 मैक क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड। और जो ये अभी हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया ना, इसकी जो स्पीड रहेगी वो कितनी है? 20 मैक। नेक्स्ट बात करते हैं बेंश्योरेंस की। बेंश्योरेंस क्या होता है? बेसिकली जब एक बैंक
और एक इंश्योरेंस कंपनी दोनों टाई अप कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, वो ईजिली जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनको डिलीवर कर सकती है, उनको वो बेच सकती है। इससे क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके अपने प्रोडक्ट्स बिकते रहेंगे और जो बैंक है उनको उनका कमीशन मिल जाएगा, क्योंकि वो उनका कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो रिसेंटली भी काफ़ी सारे बेंचुरेंस होते हैं, लेकिन जो अभी रिसेंट का भी याद रखना है, जो लेटेस्ट वो क्या है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने टाई अप किया HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ, ताकि ये बेंचुरेंस पार्टनरशिप लाई जा सके और ये अपनी सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को इनके कस्टमर को दे सके। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य किरण। सूर्य किरण ये एक्सरसाइज थी जिसका भी हमें 16th एडिशन देखने को मिला। ये 16th एडिशन कहाँ पर हुआ था, नेपाल में ही हुआ था, याद रखेंगे। और किन के बीच हुआ था, इंडिया और नेपाल के बीच में ये आपका 16th एडिशन ऑफ सूर्य एडिशन एक्सरसाइज हुआ था। ये एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 15th एडिशन, वो कहाँ पे हुआ था, वो इंडिया में हुआ था, ठीक है। और ये 16वां एडिशन जो लेटेस्ट है सूर्य किरण एक्सरसाइज का, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है, ये इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था, और कहाँ पर, नेपाल में ही। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं अभी जो पूसा इंस्टीट्यूट है, जिसको जो होता है आपका ICAR का IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने अभी चिकपी की एक नई वेराइटीज़ डेवलप की हैं, जो है पूसा JG16। और ये जो पूसा JG16 है ना, ये ड्रॉट रेजिस्टेंस है, मतलब जहाँ पे सूखा पड़ता है ना, वहाँ पे भी इन चिकपी को ईजिली ग्रो किया जा सकता है, जो कि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, बात कर विजय दिवस की। विजय दिवस को विजय दिवस भी बोला जाता है, और इसका अभी 51st एडिशन हमने ऑब्जर्व किया 2022 को। विजय दिवस हम 16 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं हर साल। फिर नेक्स्ट, इंडिया ने 2016 में फ्रांस को ऑर्डर दिए थे टू प्रोक्योर राफेल जेट्स, और राफेल का अभी जो 36वां एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर कर दिया गया है फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं IREDA। इन्होंने 4,444 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया फॉर SJVN ग्रीन एनर्जी के साथ मिलके, ताकि 1000 मेगावाट की सोलर पावर प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया जाए बीकानेर, राजस्थान में। हम जानती हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। इवन अगर आपको याद हो तो केरला ने बोला था कि 2040 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी पे 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर देंगे, और आपका 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल भी हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है काजिन 2022। काजिन ये आपकी एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसका भी हमें 6th एडिशन देखने को मिला था। किस किस के बीच, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में ये आपकी एक्सरसाइज रहती है, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। लोकेशन क्या रहेगी जहाँ पे ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, मेघालय में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। 6th एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। फिर आ जाता है एक MOU साइन किया गया था CCI, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने टैक्स प्रोसेल के साथ, ताकि जो आपकी कस्तूरी कॉटन इंडिया है ना, उसको सर्टिफिकेशन और उसकी ब्रांडिंग की जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में होना है। कहाँ पे होना है, इंडिया में होगा। इंडिया में कहाँ पर होगा, ओडिशा में होगा। ओडिशा में भी कहाँ पर होगा, भुवनेश्वर में होगा, और पोर्चुगल भुवनेश्वर में और राउरकेला में होगा, ठीक है। इस 2023 के इंडिया में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है FIH का, इनके ऑफिशियल पार्टनर किन को बनाया गया है, टाटा स्टील को इनका ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इवन अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोला गया कि फीफा वर्ल्ड कप भी इंडिया में होने की पूरे चांस है। फीफा से रिलेटेड इवेंट भी होने के अभी चांस है। कल परसों न्यूज़ आई, लेट्स सी वो आगे क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइसोनिक विंड टनल की। ट्राइसोनिक विंड टनल, ये अभी एक विंड टनल डेवलप की गई है। 160 मीटर की ये विंड टनल रहेगी, ट्राइसोनिक विंड टनल, जहाँ पे इसरो के द्वारा जो आने वाले स्पेस व्हीकल्स होंगे उनके डिज़ाइन और टेस्टिंग की जा सकेगी यहाँ पर इस ट्राइसोनिक विंड टनल में। नेक्स्ट पे आते हैं, मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2022 की बात करें तो कहाँ पे हुआ, भुवनेश्वर में हुआ था, जो कि 30 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में हुआ था आपका। और ये 2nd एडिशन था इस मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का। रीज़न क्या था, यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि डेवलपमेंट की जा सके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं मिस अर्थ 2022 की। अभी रिसेंटली किनको मिस अर्थ 2022 के टाइटल से सम्मानित किया गया, वो है साउथ कोरिया की मिन
मीना शू चोई, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, और काफ़ी टाइम बाद साउथ कोरिया के द्वारा ये टाइटल जीता गया है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं हम आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की। अभी रिसेंटली हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडिया के पास है। और अगर आपको याद हो ट्वांग में, जो कि अरुणाचल प्रदेश के वहाँ रीजन है, वहाँ पर चाइना के सोल्जर्स इंडिया में एंटर कर रहे थे और इंडिया ने उनको बाहर धकेल दिया। ठीक, तो इसीलिए और ध्यान रखते हुए कि ऐसे कोई भी क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स ना हो, ऐसा कोई भी वायलेंस अगर होता है तो उनके बारे में प्रॉपर एक डाटाबेस मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया गया। इसमें ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में आप देखेंगे तो इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल यहाँ पे पार्ट रहेंगे। ये कोचर्स रहेंगे ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के। और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो भी ये वायलेंस क्रिएट किया जाएगा ना, उसके खिलाफ रिकॉर्ड रखा जाएगा, एंड आगे अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक, तो इसको डेफिनेटली याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेट किए गए कुछ प्रोजेक्ट्स वर्थ 2450 करोड़ रुपीस मेघालय शिलोंग में। और यहीं पे अगर याद रखेंगे जो ये प्रोजेक्ट है, जैसे अगर मैं बात करूं, एक IIM शिलोंग यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, फिर 320 फिनिश्ड और 890 अंडर कंस्ट्रक्शन आपके 4G मोबाइल टावर्स यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए। ऑलराइट, रोड्स कनेक्ट किए गए, जो रोड को इनॉग्रेट किया गया जो कि शिलोंग सैटेलाइट टाउनशिप से कनेक्ट करेगा एक्सेस को। ऑलराइट, तो ये कुछ प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च किए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर हम बात करते हैं एक अंडर सी ब्लैक सी सबमरीन इलेक्ट्रिक केबल की। ये एक क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट साइन किया गया है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराने के लिए। 4 कंट्रीज याद रखेंगे, रोमानिया, हंगरी, अजरबैजान एंड जॉर्जिया। इन्होंने ये क्वाड्रिलेटरल इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया फॉर द 500 किलोवोल्ट ब्लैक सी सबमरीन केबल। ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करने की यहाँ से बात की गई बिटवीन जॉर्जिया एंड रोमानिया विद 1 गीगावाट कैपेसिटी। ये जो एग्रीमेंट है ना, इससे आपको याद रखना है ये पास होगा और इससे क्या होगा, अजरबैजान सप्लाई करेगा ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द पावर लाइन्स टू जॉर्जिया। फिर जॉर्जिया से वो केबल होती हुई जाएगी रोमानिया, फिर रोमानिया से वो जाएगी हंगरी में, और फिर हंगरी से टू रेस्ट ऑफ द यूरोप, ताकि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो आई रिपीट, सबसे पहले अजरबैजान जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ग्रीन एनर्जी को, वो देगा जॉर्जिया को, जॉर्जिया से रोमानिया जाएगी, रोमानिया से फिर वो हंगरी, और हंगरी से फिर वो आपकी यूरोप जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट जो आपको याद रखना है ग्रीन एनर्जी के लिए। फिर आ जाते हैं IDFC फर्स्ट बैंक। इन्होंने एक 0 फीस बैंकिंग ऑन सेविंग अकाउंट्स को लॉन्च किया, जिससे क्या होगा को काफ़ी सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बैंक के द्वारा, वो वहाँ पर उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। जैसे कैश डिपॉजिट, विड्रॉल्स, डिमांड ड्राफ्ट, IMPS, नेफ्ट, RTGS, ठीक है, ATM ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ATM यूसेज, इन सब पे कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, चार्ज नहीं लगेगा। अगर यहीं पे मैं IDFC फर्स्ट बैंक की बात करूं तो MD एंड CEO कौन रहेंगे, आपके V वैद्यनाथन जी, और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं, DBS बैंक ने अभी पार्टनर किया गोफ्रूगल टेक्नोलॉजीज के साथ, ताकि SMEs को एम्पावर किया जा सके टुवर्ड्स ONDC। ये SMEs क्या होते हैं, बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, छोटे बिजनेस, ताकि, और हमें पता है ONDC क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। मतलब जैसे आपका अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट होगा, वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड जिनको जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो वहाँ से उनको बाय कर सकते हैं ईजिली। तो सिमिलर टाइप का इंडिया इस मार्केट को, ये जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनको इंडिया में एक कंपटीशन देने के लिए इनके अगेंस्ट ये एक ONDC नेटवर्क लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो हमारे स्मॉल आर्टिशंस है, छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो एक स्मॉल स्केल पे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को ईजिली इस ONDC प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सके। एंड उस प्लेटफॉर्म की मदद से वो अपने जो ऑडियंस है, पहले अगर मान लो वो छोटे बिजनेसमैन है तो वो अपने लोकल एरिया तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन ONDC की मदद से वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिस्ट करके उनको जो ऑडियंस है, उनका जो डाटाबेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं ONDC की बात करूँ तो वो पहली एप्लीकेशन कौन सी थी, वो थी पेटीएम मॉल, जो यहाँ पे लिस्ट की गई थी।
अब तो मीशो भी यहाँ पे लिस्ट किया जा चुका है। और इसकी मैं बात करूँ ONDC की, तो ये अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो अभी हमें क्या याद रखना है, DBS बैंक इंडिया ने पार्टनर किया गोफ्रूगल टेक्नोलॉजीज के साथ टू एम्पावर SMEs टूवर्ड्स ONDC। ठीक है, अगर DBS बैंक की मैं बात करूं, सुरजीत सोम यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे एंड CEO रहेंगे। इस्टेब्लिश कब किया गया था, ये 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन बैंक की। इनके द्वारा भी एक स्पेशल डिपॉजिट लॉन्च की गई है जहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 7.15%। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तो देखो, अगर हम बात करूँ इस इंडियन बैंक के द्वारा जो डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की गई, उसका नाम रहेगा IND शक्ति। IND शक्ति 555 डेज, 555 दिनों के लिए ये आपकी फिक्स डिपॉजिट स्कीम रहेगी, जहाँ पे 7% तो प्रोवाइड किया जाएगा आपको जो आपके रिटेल कस्टमर्स हैं, नॉर्मल कस्टमर्स के लिए। ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए। और यही इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 7.15% कर दिया जाएगा फॉर द सीनियर सिटीजन्स। अब अगर इंडियन बैंक की मैं बात करूं तो MD एंड CEO कौन रहेंगे, वो हैं शांतिलाल जैन जी। 1907 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर रहेगा चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिलॉकर की। डिजिलॉकर क्या था बेसिकली, अगर आपको याद हो तो ये एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर्स ID कार्ड हो गया, आपके 10वीं 12वीं की मार्कशीट्स हो गई, कॉलेज के मार्कशीट हो गई, ये सारे आप यहाँ पे इजीली स्टोर कर पाएंगे। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया तो वो भी आपका यहाँ पे इजीली वर्चुअली आप स्टोर कर पाएंगे। एंड ये लॉन्च किस लिए किया गया बेसिकली, कि आप इजीली उनको कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, एकदम से पुलिस वाले ने आपको रोक लिया। अब पुलिस ने आपको रोका और वो बोलते हैं कि आप हमें अपना वो दिखाओ ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन आप स्मार्ट थे, आप लेके नहीं चलते। आपने बोला कि मैं तो मोबाइल फ़ोन में डिजिलॉकर में दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं फिजिकली तो कैरी नहीं करता, क्योंकि खोने का भी डर रहता है। तो इसीलिए ये डिजिलॉकर लॉन्च किया गया ताकि ईजिली वर्चुअली वो चीज़ें शो की जा सकें, आपके पास डॉक्यूमेंट्स इन हैंड रहे हमेशा। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, डिजिलॉकर के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये सर्विस रहेगी। तो अभी गूगल ने पार्टनर किया है डिजिलॉकर के साथ ताकि टू ब्रिंग ऑन डिवाइस स्टोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट ID। ठीक है, ये गूगल ने पार्टनर किया भी डिजिलॉकर के साथ, ये याद रखेंगे डायरेक्टली। दिस पार्टनरशिप वाज अ पार्ट ऑफ गूगल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफरिंग एंड गूगल्स AI ऑफरिंग इंक्लूड ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड ऑर्गेनाइज देम इन अ लोकल स्टोर्ड फाइल्स फोल्डर। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के सरगम कौशल की। ये सरगम कौशल 32 साल की है। ये मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। इनका जन्म जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। ये टीचर है, ठीक है, कंटेंट राइटर भी हैं ये, और इनको पेंटिंग का शौक है। और रिसेंट न्यूज़ क्या है कि इन्होंने मिस वर्ल्ड 2022 का टाइटल जीत लिया है। और ये टाइटल इंडिया में 2001 में जीता था और अब 2001 के बाद 2022 में ये टाइटल जीता गया है सरगम कौशल जी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ रहेगी, तो मार्क करेंगे। ठीक, इससे पहले अगर मैं बात करूं, ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, मिस वर्ल्ड 2022 का, मिसेस वर्ल्ड 2022 का नेवाडा USA में ये आपका इवेंट हुआ था। और यहाँ पे याद रखेंगे आदिति गोवित्रिकर, उन्होंने मिस वर्ल्ड 2001 में टाइटल जीता था इंडिया के लिए, और अब 2022 में सरगम कौशल ने ये टाइटल जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। NMDC क्या, आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इन्होंने अभी रिसेंटली IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 को जीत लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कहाँ जीता, एट द 37th इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड हाई लेवल ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस, चेन्नई तमिलनाडु में इन्होंने ये इवेंट अवार्ड को जीत लिया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनको अभी आयरलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है फॉर द सेकेंड टाइम। इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर, इनको आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया फॉर द सेकेंड टाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट
MCA सेक्रेटरी मनोज गोविल, इनको नेम किया गया एज द सेबी बोर्ड मेंबर। अगर हम मनोज गोविल की बात करें, ये 1991 बैच के IAS ऑफिसर हैं ऑफ मध्य प्रदेश कैडर, एंड ये सेक्रेटरी हैं ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और अभी इनको नॉमिनेट किया गया टू द बोर्ड ऑफ सेबी। मनोज गोविल ये किनको रिप्लेस करेंगे? राजेश वर्मा को रिप्लेस करेंगे, जो कि 1987 के IAS ऑफिसर हैं ऑफ द ओडिशा कैडर। नेक्स्ट बात करते हैं LIC की। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया अभी अपना स्टेक बढ़ा देगी IRCTC में टू ओवर 7%। इन्होंने 1.81 करोड़ शेयर्स अभी वापस खरीद ली हैं IRCTC के। पहले इनके पास कुछ 4 करोड़ शेयर थे, अब 1.81 करोड़ शेयर बढ़ा के ये कुछ 5 करोड़ 82 लाख इनके शेयर टोटल हो गए हैं इन IRCTC। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं INS मोरमुगांव की। INS मोरमुगांव ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो कि इंडियन नेवी में अभी कमीशन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। कहाँ पे कमीशन किया गया है? ये डॉकयार्ड, नेवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र में इसको कमीशन किया गया। और ये जो INS मोरमुगांव है इसको D67 के नाम से भी जानते हैं। ये सेकेंड ऑफ द 4 विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट 15B, P15B के नाम से भी जानते हैं, ऑफ द स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। और इसको कमीशन कहाँ किया गया? नेवल डॉकयार्ड में मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और चीज़ इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ये सी ट्रायल में गया था 19 दिसंबर को, और 19 दिसंबर को ही हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? गोवा लिबरेशन डे। इसी दिन गोवा लिबरेशन डे मतलब इसी दिन पोर्चुगीज से गोवा के पीपलों को यहाँ पे लिबरेट किया गया था। ऑल्सो दिस इज टू कमेमोरेट द आर्म्ड फोर्सेज ऑपरेशन नोन एज ऑपरेशन विजय विच वॉज लॉन्च्ड इन 1961, 19 दिसंबर को ही। ठीक, तो कमिंग बैक, याद रखेंगे INS मोरमुगांव ये आपका मुंबई महाराष्ट्र नेवल डॉकयार्ड में आपका कमीशन करा गया। अगर मैं इसकी बात करूं, ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया है? मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धरती एग्रो। इनके द्वारा लॉन्च किया गया वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट GMS बेस्ड काउपी हाइब्रिड्स को। ये काउपी हाइब्रिड्स लेग्यूमिनस प्लांट है, तो ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं, मतलब वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से करते हैं। ये फाइब्रस प्लांट है, प्रोटीन रिच है क्योंकि ये लेग्यूमिनस है। तो हम जानते हैं जो दाल वगैरह होती हैं वो हमारी क्या होती है? लेग्यूमिनस होती है, उसमें प्रोटीन होता है। तो सिमिलरली आपकी जो काउपी होती है ये भी प्रोटीन रिच होती है, काफ़ी मिनरल्स होते हैं इसमें। और ये वर्ल्ड का पहला GMS बेस्ड काउपी हाइब्रिड बना जो धरती एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया। और जो 3 हाइब्रिड्स यहाँ पे डेवलप किया गया वो हैं बबली, शर्ली और पूर्वाजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 की कहाँ पर हुआ? पहला क्वेश्चन यही बनेगा, तो ये कतर में हुआ था। फिर इसके बाद याद रखेंगे कतर में होने के बाद ये जो इवेंट था फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ, और किसके द्वारा जीता गया? अर्जेंटीना के द्वारा इसको जीता गया था। ठीक है, अर्जेंटीना ने इसको जीता। अर्जेंटीना के कैप्टन लायनल मेसी थे, और शायद लायनल मेसी अब रिटायरमेंट भी ले लेंगे। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे अर्जेंटीना के द्वारा ये 3rd वर्ल्ड कप टाइटल है जो जीता गया था। ठीक है, चलिए इसके साथ याद रखेंगे जो अर्जेंटीना के कैप्टन है लायनल मेसी, ये 7 टाइम बैलन डी'ओर विनर है, और इनको टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर का खिताब भी जीता, और इन्हीं को गोल्डन बॉल से भी सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन वीमेंस हॉकी टीम वन द FIH हॉकी वीमेंस नेशन कप स्पेन 2022 का। तो इंडियन वीमेंस हॉकी टीम ने 1-0 से हरा के स्पेन को ये FIH का नेशन कप को जीत लिया है। ये वेलेंसिया स्पेन में हुआ था। ठीक, ये भी याद रखेंगे। और अगर मैं टॉप ऑर्डर की बात करूं, इंडिया टॉप पोजीशन पे रहा, फिर स्पेन आ गया, उसके बाद फ्रांस आ गया 3rd पोजीशन पे, और फिर आयरलैंड आ गया आपका 4th पोजीशन पे। और अगर मैं FIH की बात करूं तो हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? लॉज़ैन स्विट्जरलैंड में ये हेडक्वार्टर है FIH का। नेक्स्ट, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। याद रखेंगे जो माइग्रेंट्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, ठीक है, वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं उसकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे हम ऑब्जर्व
करते हैं। इसके बाद आ जाता है यूनाइटेड नेशन अरेबिक लैंग्वेज डे। यूनाइटेड नेशन अरेबिक लैंग्वेज डे की बात करें, इसी को हम वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे के नाम से भी जानते हैं। 18 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू ऑनर एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द मिडल ईस्टर्न रीजन। यहाँ पे थीम याद रखेंगे इस वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन अरेबिक डे की, वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे की थीम रहेगी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अरेबिक लैंग्वेज टू ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फिर अगर मैं यूनेस्को की बात करूं तो पेरिस फ्रांस में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। 1945 में ये इस्टेब्लिश किया गया था और 193 इसके मेंबर्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स रहेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजोले। नेक्स्ट आ जाता है माइनॉरिटीज़ राइट्स डे। 18 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है और माइनॉरिटी राइट्स डे बेसिकली क्या हो गया, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपनी राइट्स के बारे में अवेयर कराने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया और इनॉग्रेट किया कुछ प्रोजेक्ट्स वर्थ 2450 करोड़ इन शिलोंग मेघालय। क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट साइन किया गया ऑन ब्लैक सी सबमरीन इलेक्ट्रिक केबल फॉर द सप्लाई ऑफ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। IDFC फर्स्ट बैंक ने जीरो फी बैंकिंग को लॉन्च किया ऑन सेविंग अकाउंट। DBS बैंक इंडिया ने पार्टनर किया गोफ्रुगल टेक के साथ टू एम्पावर SMEs टुवर्ड्स ONDC। इंडियन बैंक ने लॉन्च किया स्पेशल फिक्स डिपॉजिट ऑफ 555 डेज विद रिटर्न्स ऑफ अप टू 7.15%। गूगल ने पार्टनर किया डिजिलॉकर के साथ टू ब्रिंग ऑन डिवाइस स्टोरिंग ऑफ गवर्नमेंट IDs। फिर विप्रो एंड फिनस्टारा ने पार्टनर किया टू टारगेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेसेस विद कॉर्पोरेट बैंक्स इन मिडल ईस्ट। इंडिया के सरगम कौशल इनको क्राउन किया गया एस मिस वर्ल्ड 2022। NMDC ने जीता BIEI इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 को। इंडियन ओरिजिन लियो वाराडकर ने को इलेक्ट किया गया एज द आयरलैंड्स प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम। MCA सेक्रेटरी मनोज गोविल इनको नॉमिनेट किया गया सेबी बोर्ड मेंबर के तौर पे। LIC ने रेज किया IRCT में अपना स्टेक टू 7% बाय बाइंग 1.81 करोड़ शेयर्स। INS मॉर्मोगवा स्टीथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रहेगा जो कि कमीशन किया गया इंडियन नेवी में। फिर आ जाता है धरती एग्रो केमिकल्स लिमिटेड, इनके द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का पहला GMS बेस्ड काउपी हाइब्रिड्स। फिर फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 की बात करें, कतर में हुआ और अर्जेंटीना ने जीता इसको फॉर द थर्ड टाइम। इंडियन वीमेंस हॉकी टीम ने FIH हॉकी वीमेंस नेशन कप को जीता जो कि स्पेन में हुआ। और 18 दिसंबर को 3 डे ऑब्जर्व किए जाते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, UN अरेबिक लैंग्वेज डे और माइनॉरिटीज़ राइट्स डे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, विच कंट्री लॉन्च द सरफेस वाटर एंड ओशन टॉपोग्राफी, जिसको स्वॉट स्पेसक्राफ्ट बोला गया। फिर ICMR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, ये किसके द्वारा, किस सिटी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। फिर किस इंस्टीट्यूशन ने भी अडॉप्ट किया एक प्लान ताकि जो मल्टीनेशनल बिजनेसेस है ना उन पे मिनिमम 15% का टैक्स होना चाहिए। चौथा, इंडियन ओरिजिन लीडर लियो वाराडकर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। पांचवा, व्हेन इज द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन देना चाहता हूँ जिस पे आप डिस्कशन करेंगे, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हमें इंक्रीज़ इन टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, इसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा। आपको क्या लगता है इंडिया को क्या सॉल्यूशंस लेने चाहिए, किस पे वर्क करना चाहिए, किस फील्ड में वर्क करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो चेंज इन टेम्परेचर हम देख रहे हैं, और इवन रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी कि इंडिया का टेम्परेचर आने वाले सालों में इतना ज़्यादा हो जाएगा, जो हीट वेव्स हैं वो इतनी ज़्यादा होंगी कि जो लिविंग टेम्परेचर है यहाँ पे अनबियरेबल रहेगा, लोग उसको बियर नहीं कर पाएंगे। इवन जो एयर कंडीशन की नीड होगी वो 8 टाइम्स बढ़ने वाली है आने वाले 8 से 9 सालों में। तो इसके ऊपर डिस्कशन कीजिए, क्या आपको लगता है, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड लेट्स डिस्कस देयर। ऑल्सो फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हैं ये सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें, कंटिन्यू रखें, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.